Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do exercise 1B D2 8th edition and question number 9 we have to solve. Okay, I have made all the playlists so you can easily find all the question of this chapter in one playlist. So you can search that. Okay, question number 9. On a sheet of graph paper using a scale 2 centimeter to represent one unit, that means दो boxes के बाद, दो बड़े boxes के बाद आप एक यूनिट छोड़ेंगे, मतलब एक को लिखेंगे 1 2 3 इस तरह से, एंड 1 सेंटीमीटर एक छोटे बॉक्स के साथ एक लिखेंगे वाई एक्सिस पे. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 6 - 3x फ्रॉम द वैल्यूज -3 till 3. ओके, y इज इक्वल टू 6 - 3x. I have to take the value of from -3 to 3, so you can take one negative value or one positive if you want to, otherwise you can take 1 2 3. It's your choice. If I will take 0, so the value of y is 6. If I will take 1, so the value of when x is equal to 1, so the value of y is equal to 6 minus 3 into 1, that is 6 minus 3, the answer is 3. When you will take x is equal to 2, so y is equal to 6 minus 3 into 2, it will be 6 minus 6, so the answer is y is equal to 0. So 2 and 0, these are the values that we will draw on our graph paper. So let's draw it. I have a graph paper over here with me. There are no negative value for the y-axis and for x-axis, so there is no need to draw the negative side. One big box. This is this one big and 2. After 2, I have to write 1. Okay, so 1 2 2. The maximum value on x-axis is 2 and the maximum value on y-axis is 6. So one box representing 1 on y-axis. 1 2 3 4 5 6, maximum till 6. This is y-axis, this is x-axis. Okay, the very first value is 0 and 6, so that means 0, this is starting point is always 0. 0 and 6, this is your point. Second point is 1 and 3, so 1 and 3, this is a point. And the third point is 2 0, so that means this is your point. So clearly it's a straight line. If it is not straight line, if something like doing you feel something wrong, so you have to check your working again, your points again. Okay, second point, they are saying that the points a0 -2b and c 1.5 lie on the graph 1. Find the values of a, b and c. a0, दैट मीन वाई एक्सिस पे जब ज़ीरो है, सो आपने एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है क्या होगा. वाई जब आप ज़ीरो पुट कर देते हैं, सो दैट मीन ए आप इसमें पुट करके भी कर सकते हैं. एंड वाई जब ज़ीरो है तो मेरे पास एक्स भी, एक्स मेरे पास क्या बनेगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे वाई की जगह आप ज़ीरो लगा देते हैं. इट विल बी 6 - 3x. So 6 will shift over here, -3, this is equal to -3x, and it will be minus minus cancel, x is equal to 2. हाँ ठीक है, ज़ीरो है तो आप एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू देखेंगे, दैट इज़ 2. सो दैट मीन ए जो है वो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया. -2 एंड बी. अच्छा जी, एक्स एक्सिस पे -2, ये हमारे पास हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं. एक्स का -2, वाई इज इक्वल टू 6 - 3 इंटू -2, सो इट विल बी 6 माइनस माइनस प्लस 6, so the value is 12. The value of y is, that means the value of b is 12. c 1.5. 1.5 पे आप देख लें, 1 यहाँ पे है तो 1.5 आपका यहाँ पे है. ग्राफ से आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपने इस लाइन को यहाँ पे मैच करना है और फिर आपने चेक करना है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है. ये देखें, ये इधर आ रहा है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट ये बन रहा है 1.5 ही बन रहा है. ठीक है, ये आपके पास c क्या बन रहा है, 1.5. अदरवाइज़ आप इसको
इसमें वैल्यूज़ में यहाँ पे भी हम लगा के कर सकते हैं, ठीक है. So you will get the answer from there as well. Question number 10. On a sheet of graph paper using scale 2 centimeter to represent 1 unit, on x-axis and 1 centimeter to represent a 1 unit, same जो हमने पहले किया है. You have to draw the graph for the function y is equal to 2x plus 4 and y is equal to, means we have two different equations और उन दोनों के लिए हमें एक ही सेम ही ग्राफ बनाना है. सो कुछ पहले तो हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए. हमारे पास कौन सी दो इक्वेशन है. y इज़ इक्वल टू 2x plus 4 and the second equation is y is equal to 2 minus 3x. So इसके लिए अलग से टेबल ड्रॉ हो जाएगा. पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. -2 से 2 तक है, सो 0 1 and 2. आई ऑलवेज टेक दीज वैल्यूज़. यू कैन टेक एनी डिफरेंट वैल्यूज़. ग्राफ आपके पास सेम ही बनता है, लाइक स्ट्रेट लाइन बनती है और आगे पीछे हो सकती है. जब आप 0 पुट करेंगे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 4. जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 4, दैट मीन इट विल बी 6. when you will put 2, so x is equal to 2, value of y will be equal to 2 into 2 plus 4, so it will be 4 plus 4 8. Clear. Now I will make a graph for this as well, table for this as well. यहाँ पे आप values बेशक change कर दें. For example, if I am taking -2 0 and 2, this is the value of x, this is the value of y. When you will put 0, so the value of y will be equal to 2. When you will put x is equal to -2, so the value of y will be equal to 2 minus 2, it will be 2 minus minus plus 3 2s are 6, so the value is 8. When you will put plus 2, so it will be y is equal to 2 minus 3 into 2, it will be 2 minus 6, so the answer is -4. So let's draw it on our graph paper. Okay, I have drawn this for you people, 1 and 2, and on the other side on negative x-axis it is also -1 and 2. So very first value is, if I will talking about this, so it is 0 and 4. So 0 and 4, this point. Second is 1 and 6, so 1 and 6 is this point. 2 and 8, so 2 and 8 is this point. So this is the equation or the graph for the first equation. This is for first equation. For the second, -2 and 8, so -2 and 8, this is a point. 0 and 2, 0 and y-axis is 2, and 2 and -4, 2 and -4. You can see that there is a gap of the numbers, so there is a gap of x-axis, means x-axis के नंबर हमने गैप से लिए थे ना, -2 एंड देन 1 को स्किप किया था और फिर सो आप देख सकते हैं कि लाइन भी आपके पास लंबी ही बनी है. सो ये आपके पास आ गया पार्ट 2, लाइन 2 की. ठीक है, ये लाइन 2 है और ये आपके पास लाइन 1 का ग्राफ बन गया. होप सो इट्स क्लियर टू यू. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा मज़े का और बड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन होता है कि इसमें एक ACG टाइप हमारे पास लाइंस बनी हुई हैं और उसमें हमें उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है. अच्छा, अब ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का आसान तरीका मैंने आपको राइज एंड रन वाला सिखाया हुआ है. सो राइज एंड रन से अगर आप इसका देखते हैं कि इसका राइज कितना है, राइज ये देखें यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये और ये है. सो ये आपके पास क्या है, 2 and -1. इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ. लाइन 1 के लिए आपके पास बन जाएगा, इट्स क्लियर, यस. लाइन 1 के लिए आपके पास है राइज 2 -1. रन कितना है, अब आपने रन देखना है, ये देखें यहाँ से ये रन है. ठीक है, सो ये आपके पास बनेगा -4 माइनस और ये इसका अपना माइनस है. सो 2 -1 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3, so it is 1 divided by -1. The answer is -1. Now it's positive gradient or negative gradient.
Okay, so its gradient is -1. Next one is line 2. Line 2 is a horizontal line, and I told you whenever the horizontal line is there, so its gradient is always 0. हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है, और वर्टिकल लाइन जो आपके पास लाइन 5 बनेगी उसका इन्फिनिटी बनेगा. अच्छा, लाइन 3 की तरफ अगर हम आते हैं, सो दिस इज़ आर लाइन 3. अच्छा, लाइन 3 में राइज कितना हो रहा है और रन कितना हो रहा है. राइज आपके पास हो रहा है लाइन 3 में, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये जनाब यहाँ तक है. सो दैट मीन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट लाइक 2.5 -1 का होगा. और रन आपके पास यहाँ से -1 एंड दिस इज़ 0.5. तो सॉल्व कर लेते हैं. लाइन 3 राइज ओवर रन. राइज आपने देखना यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है. सो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या 1 है, और यहाँ पे ये जाके एंड हो रहा है. सो ये आपके पास बनेगा 2.5. हम ले लेते हैं 2.5 -1. अच्छा जी, रन के लिए आप लेंगे -1 और इसी का ये वाला पॉइंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है. सो ये आपके पास बनेगा, मैंने स्टार्टिंग ये लिया ना 2.5, तो यहाँ से इसका मतलब है मुझे ये लेना पड़ेगा 0.5 -1. सो इट विल बी from here 2.5 -1, it's 1.5 divided by 0.5 minus plus 1 plus 0.5, it's 1.5. so cancel, the answer is 1. यहाँ से आपके पास 1.5 बनता है, ठीक है. ओके, लाइन 4 पे आ जाते हैं फिर हम. लाइन 4 आपके पास ये देखें, अब नेगेटिव ग्रेडियंट है इसका, ठीक है ना. ये यहाँ से स्टार्ट है 2.5 और ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे. सो ये आपके पास हम ले लेते हैं माइनस ये 2.5. ये देखें जी, लाइन 4 आपके पास बनेगी राइज ओवर रन. सो 2.5 माइनस 2.5 नेगेटिव साइड पे चला गया ना, ये देखें. अच्छा, रन आपके पास बनेगा, ये बनेगा जनाब यहाँ से 0.5 और ये बनेगा 1.5. पहले मैंने ये लिया था तो इसी का ही हम रन में भी यही स्टार्ट कर लेते हैं. 0.5 माइनस मैंने क्या बताया था, इट्स 1.5, ठीक है. सो ये बन जाएगा, और ये आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है तो हमें माइनस साइन इसके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो ये L4 आपके पास बनेगा, नेगेटिव ग्रेडियंट है तो राइज में आप 1.5 पहले लेंगे, ठीक है. सो ये आपके पास 1.5 माइनस, अच्छा बात तो एक ही है, जो भी आप ले लेते हैं -0.5, वहाँ से भी आपके पास यही बनेगा, ठीक है. सो 2.5 माइनस माइनस प्लस, इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.5 minus 1. Sure, let me check it. Okay, my bad, sorry. इट्स स्टार्टिंग इज़ 0.5, एंडिंग यहाँ पे हो रही है ना, तो ये आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है दैट इज़ 2.5 नॉट 1.5. दिस इज़ 2.5. 2.5 माइनस 0.5, द आंसर इज़ 2. सो फ्रॉम हियर इट इज़ 2.5 एंड नेगेटिव साइन इसके साथ ही आता जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव ग्रेडियंट है. अच्छा जी, लाइन 5 आपके पास क्या जा रही है, हॉरिजॉन्ट वर्टिकल लाइन है, सो उसका आपके पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा हमारे पास, ठीक है. ओके, सॉरी. ओके, इन पार्ट 2 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन 1, 2 एंड 3. हमने लाइन 1, 2 और 3 की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है. सो वी नो दैट आर इक्वेशन फार्मूला इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c. m तो हमने सारी जगह से फाइंड आउट कर लिया, हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, c फाइंड आउट करना है. c फाइंड आउट करने के लिए आपके पास, अगर आपको लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है. ऐसे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि लाइंस हमारे पास कट नहीं कर रही. अगर मैं इस लाइन को देखें, ये वाली लाइन है, इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड करती हूँ, सो ये आपके पास कहाँ से पास हो रही है, -2 से पास हो रही है. सो दैट मीन्स c जो है वो -2 है, m जो है वो लाइन 1 का क्या था,
-1 था, सो इट विल बी -x-2। लाइन 2 क्योंकि वो ज़ीरो है और वो आपके पास लाइन 2 के लिए आपके पास x तो ज़ीरो हो गया, ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया, सो y विल बी इक्वल टू 1। L2 के लिए आपके पास y इज़ इक्वल टू 1 बन जाएगा। अच्छा जी, L3 के लिए आपके पास ये ग्रेडियंट कहाँ से पास हो रहा है, ये आपके पास ये देखें y इंटरसेप्ट कहाँ पे y को कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। सो आपके पास L3 के लिए आपके पास बनेगा, इसका ग्रेडियंट था 1, सो दैट मीन 1x प्लस 2। लाइन 4 के लिए आपके पास ग्रेडियंट आपने चेक करना है, इसको इसी लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि लाइन कहाँ पे जाके मीट कर रही है वाई एक्सिस को। सो ये हम करते हैं एक्सटेंड, तो ये जाएगी जनाब 4 से थोड़ा सा पहले है, बहुत कम, तो 4 भी ले सकते हैं, या अगर आप 3.9 भी ले लें तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा -2.5x प्लस 4, ठीक हो गया। और लाइन 5 का आपके पास क्योंकि वो वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसका वाई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये जितना भी आप इसको एक्सटेंड कर लें वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सो L5 की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू क्या बनेगी, 2.5x, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसको सिर्फ x की फॉर्म में आंसर आता है, y उसका हमारे पास वो ग्रेडियंट जो होता है वो नहीं होता उसका। ओके, सो दैट मीन द एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। ओके, दे जस्ट आस्क्ड अबाउट 1, 3 एंड 4, हमने सबका फाइंड आउट कर लिया, सो इट्स गुड फॉर यू। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।